मैं सर बुला रहा हूँ MS मलिक साहब को। फौजी भी हैं, IPS भी हैं और लॉ में PhD भी हैं, मेरे से ज़्यादा पढ़ गए हैं और लगातार जुड़े रहे हैं ज़मीन से, किसानों की समस्याओं से। तो उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो आके आपसे बात करेंगे। Honorable Mr. Justice M.S. Lebran, Honorable Chairman of Kirti Kisan Group, Mr. S.S. Boparai ji, other esteemed speakers on the stage, भाई और बहनों, for a while I was thinking since 10:30 that about 4 days back there was news in the newspapers about 1,15,000 persons in UK. They have submitted a memorandum to the Parliament to be discussed the Kisan problems and the Kisan Andolan in India. I thought I was in the British Parliament. For a while, initially a beautiful welcome song was given by young veterans on agriculture. And we have the youngest veteran, the chairman of the group. Why youngest? Because he has 43 years of experience and 40 years of age, because experience cannot be bought in any market, in any jeweler's shop, nowhere. So he has that rich experience. Coming to the point, the farmers all over India, they speak all languages except English. Am I correct? Only 5% farmers, they speak English. Farmers at the borders, at Singhu border, Gazipur border, Tikri border, even in Punjab, various places, they only speak language of their choice. Honorable Professor R.S. Ghumman, when he went to Singhu, he did not speak in English. So since we are speaking the farmers' issue, can I speak in Hindi or Punjabi or mixed? Let it be the mixed one. Then everyone has expressed the concern on the farmers' suicide. Over 200 farmers have committed suicide ever since this Andolan. Since 1995, 2,95,438 farmers have committed suicide. 14,824 farmers committing suicide every year. Reasons have been expressed by Professor Ghumman as well as our esteemed comparer, Honorable Mr. R.S. Chima. So I request all of you, can we pay first, before I start my narration, homage to the farmers, because a resolution for paying homage, resolution for paying Shraddhanjali was submitted in Parliament, not allowed. Resolution for paying homage was submitted in Haryana Assembly, not allowed. Otherwise, even if a grandson of some elected representative, he expires, he dies the natural death, there is always a resolution. There is always a resolution before start of the discussion. The very opening day of the session, whether it be Parliament or any legislature session. So farmers deserve at least Shraddhanjali. So, ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ, can we pay Shraddhanjali? So, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੀ 70% ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ।
जाइए। अब फार्मर्स काज, well, our seminar for today is the Kisan challenges and possibilities. I will try to put upon challenges, though it has been narrated by various speakers. Challenges, one is the biggest challenge is government साड़ी गल नहीं मानती, government साड़ी गल नहीं मानती। की गल नहीं मानती? 3 कृषि कानूनों ने वापस नहीं ले लेंगे, जिन्होंने असी काले कानून दसते हैं। काले कानून दसते हैं ना। एक छोटी सी गल, हिंदुस्तान आजाद होने तो पहले मैं दसदा, दीनबंधु चौधरी छोटू राम का नाम सुने? 1938 ਦੇ ਵਿੱਚ, if anybody has problem I can speak in English, no problem for me. Okay, 1938 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 38 कानून किसानों के हित दे बनाए सीगे। इन्होंने तो 3 बनाए हैं जो कसब साहब कह रहे थे या घुमन साहब कह रहे सीगे किसानों के वेलफेयर के वास्ते। सरकार कहते, ये नहीं कहते, सरकार कहते दीज आर द रिफॉर्म्स। उस वेले 38 कानून बनाए सीगे, 38 किसानों ने भी विरोध नहीं किया। 38 किसानों ने भी जेड़े कानून बनाए सीगे एज रेवेन्यू मिनिस्टर which were enacted in Lahore Assembly, not a single voice of dissent was there. सच्ची गल है। लेकिन अब किसान भारत के कोने कोने से एदा विरोध कर दे, तो ये 3 कानून जन विरोधी हैं, जनहित दे विच जन विरोधी है। तो ये आंदोलन भी जनहित का है, किसानों के हित का है, जन विरोधी आंदोलन नहीं है। कभी कहते हैं जन विरोधी है, इट इज नॉट ए जन विरोधी आंदोलन। और किसानों की सुसाइड के बारे में तो नहीं कह दिया। हमेशा जो किसान है, दीनबंधु चौधरी, छोटू राम, जितने भी किसान लीडर, वो कहते हैं इस दुनिया में कोई अगर सच्चा बंदा है, जेड़ा अगर एक भी सच्चा बंदा है तो वो किसान है। इस दुनिया दे विच किसी दी नेक कमाई है, किसी दी भी नेक कमाई है तो वो किसान है। सो किसान ऑलवेज स्टैंड्स फॉर जस्टिस एंड ट्रुथ। वो सच्चाई और ईमानदारी से अपना हक मांगते हैं और शांति का भी प्रतीक है। वो कोई लड़ाई करने उत्थे नहीं गए, वो अपना हक मांगने गए। एक बंदे ने कोई झंडा लगा दिया, एक बंदे ने कोई झंडा लगा दिया, कोई जुल्म नहीं कर दिया, थोड़ा विरोध। लेकिन बाई एंड लार्ज किसान शांतिपूर्वक हैं, शांतिपूर्वक रहेंगे। लेकिन सरकार बार बार इनको तंग कर रही है। गरीब आदमी है, और किसी ने कहा है गरीब नू ना सताना, सुनेगा ओदी रब, जड़ मूल तो खो देगा। ये गरीब नू सरकार बार बार तंग कर दी है। असी रेजोल्यूशन लेके जाते हैं, असी क्या हल है वो लेके जाते हैं, यूनियन जाती है और कहते इन्हों के कोल प्रस्ताव नहीं है। प्रस्ताव हैगा भाई 3 कानून वापस लो, तां साडे तुहाडे नाल गल करेंगे। 8 राउंड ऑफ टॉक्स हो चुके हैं every time, and before going there they know what is going to be the result, but no result. और ये किसान आंदोलन ग्लोबल हो चुका है। पंजाब साडा पढ़ा कल ही चले थे, कारवां जुड़ता चला गया। अभी कन्याकुमारी से हिमालय तक इसकी आवाज उठती है। किसी भी फोरम में छोटे बच्चे, स्टूडेंट्स, सोशल एक्टिविस्ट और किसान और मजदूर दोनों ही, जेरा अपना देश है वो 3 कक्या नाल ही जुड़ा है। हिंदी का शब्द कै, पंजाबी गुरमुखी का कै, 3 कक्के, किसान, कामगार, काश्तकार। अगर ये 3 कक्के हटा दो, इन्होंने मार छो, तो देश नहीं चलना। 3 कक्या दे उत्ते 70% इस देश की जनता गुजारा करती है, और वो 70% जनता भारतवर्ष की 15% इकोनॉमी के अंदर इनका हिस्सा है। 41.49% लेबर को एम्प्लॉय करती है, जो बेरोजगारी बड़ी भारी समस्या है। आप लोग, आप किसानों के बच्चे,
आप किसान, आप लोग एम्प्लॉय करते हो। अगर किसानों ने ये सब बंद कर दिया तो देश का क्या हाल होगा, ये आप अंदाजा लगा सकते हो। यही नहीं, इवन प्रोफेशनल इस आंदोलन में है। न्यू जर्सी से एक यंग डॉक्टर, उसने किसी को प्रोवोक नहीं किया, जो कि सरकार इल्जाम लगाती है भाई पैसे दे के भेजे हुए हैं, ये तो किसी के दल्ले हैं, इनको तो पैसे बार बार सप्लाई हो रहे हैं। न्यू जर्सी पर द फेमस कार्डियोलॉजिस्ट जिस दिन से आंदोलन है अपनी प्रैक्टिस छोड़ के सिंगू बॉर्डर पर बैठा है, स्वायमान सिंह। और भी बहुत हैं, और भी बहुत हैं, और जिनको कोई न्याय नहीं मिलता। न्याय की तो बात ही छोड़िए, चीमा साहब है यहाँ पर, एक ट्रैक्टर किसान का गड्ढा है कि नहीं है? है किसान गड्ढा। चौधरी देवीलाल, जिसको ताऊ देवीलाल हम कहते हैं, उन्होंने इसको कहा था एक किसान का गड्ढा है। आज वो किसान का गड्ढा, चीमा साहब अच्छा समझेंगे, वेपन ऑफ ऑफेंस बन चुका है। वेपन ऑफ ऑफेंस बन चुका है। कहता है ट्रैक्टर ना लाए और बंदे मार दिए, कोई कुचल दिया, और ट्रैक्टर ना लाए पुलिस के बैरिकेड तोड़ दिए। और ये ट्रैक्टर, इसको ट्रांसपोर्ट व्हीकल बना दिया गया। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, ट्रांसपोर्ट एक्ट हैज बीन चेंज्ड, और इसको ट्रांसपोर्ट व्हीकल, जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल का खर्च है एनुअल, वो 2 साल में आपकी ट्रैक्टर की कीमत पूरी हो जाएगी। इतना पैसा कहां से देगा किसान? नहीं दे सकता। इसको ट्रांसपोर्ट व्हीकल बना दिया। और साथ की साथ अभी नोटिफिकेशन दिल्ली गवर्नमेंट ने जारी किया है कि एनसीआर के अंदर, दैट इज नेशनल कैपिटल रीजन, 89 किलोमीटर्स radius from around Delhi, the tractors 10 years old, 15 years old will not be allowed to enter Delhi. Will not be allowed to enter Delhi. ये तो आपको पता ही नहीं है कितनी बड़ी बात है। और अभी घबरा गए भाई, सरकार नहीं मानती। इसकी घबराने की कोई बात नहीं है, मैं आपको फैक्ट्स बताता हूं। आज तक आजादी तो पहला जिन्ने किसान आंदोलन हुए, सब दे सब कामयाब हुए। देवेंद्र शर्मा भी जी बैठे हैं, मैं ज्यादा नहीं पढ़ता, ना ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, छोटी मोटी गलती हो जाए तो फिर माफ करना। 1907 में सब तो पहला सरदार अजीत सिंह, शहीद भगत सिंह के चाचा जी, उन्होंने आंदोलन किया। पगड़ी संभाल जट्टा के नाम से आंदोलन हुआ, क्योंकि पगड़ी किसाना दी शान है, पगड़ी किसाना दी इज्जत है। और किसी आदमी ने कहा है गरीब आदमी से उसकी पगड़ी छीन लो, उसकी इज्जत ला दो, और अमीर आदमी का पैसा छीन लो, अपने आप मर जाएंगे। तो इज्जत लाने तो सरकार तैयार बैठी है ना, पैसा थोड़े कोल है नहीं। और अभी 1907 में वो कामयाब हुआ। 1917 में महात्मा गांधी जी ने, देश के राष्ट्रपिता ने, चंपारण के अंदर आंदोलन किया था। नॉर्मली टीलर्स और फार्मर्स का आंदोलन साथ साथ चलता है। इट वाज द टेनेंट्स मूवमेंट। और वो क्योंकि वायलेंस के अंदर, वायलेंस की वजह से, हिंसा की वजह से महात्मा गांधी ने आंदोलन बंद करना पड़ा। लेकिन किसानों की मांग ब्रिटिश राज में भी उस टाइम मांगी गई थी। 1918 में आजादी के सबसे बड़े सिपा सलार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के अंदर, खेदा के अंदर आंदोलन किया था। उस टाइम भी ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन कामयाब हुआ था और सरकार ने किसानों की मांग मान ली थी। इसी प्रकार 1928 में फिर बारडोली के अंदर गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आंदोलन किया था। उस टाइम भी किसानों की बात ब्रिटिश राज ने मान ली थी। और मैं तो ऑप्टिमिस्टिक हूं, ये आंदोलन भी कामयाब होगा, ये आंदोलन भी कामयाब होगा। आप निश्चिंत रहें, इसको सपोर्ट करें। अभी एक डीजल प्राइसेस, मैं इसका जिक्र ये कर रहा हूं, सब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन सब तो ज्यादा मार डीजल की किसनू पैंदी है? किसान नू पैंदी है। ये 1914 से लेके अब तक लगातार प्राइसेस बढ़ रही हैं, कभी 25%, 30%। और पेट्रोल की कीमत 100 रुपए और डीजल की कीमत 83-84 रुपए है ना। लेकिन आप हैरान होगे, हमारे से जो गरीब देश हैं,
जो हमारे पड़ोसी देश हैं, आप हैरान होंगे उनकी कीमतें अगर मैं बताऊंगा डीजल की क्या है और पेट्रोल। श्रीलंका के अंदर पेट्रोल की कीमत 60 रुपए 29 पैसे, इंडिया में कितनी? 100 रुपए। डीजल की कीमत 38 रुपए 91, हमारे आधे से भी ज्यादा कम। नेपाल 69 रुपए, नहीं आ रही आवाज, नहीं आ रही। Kindly switch your mobile off. Somebody's mobile is not on the silent. नेपाल में 69 रुपए और डीजल 56 रुपए। मेरे पास है नहीं, आई डिड नॉट, आई एम वेरी डिसिप्लिन सर। पाकिस्तान में 51 रुपए और इंडिया में नहीं, उसमें पाकिस्तान में पेट्रोल 51 रुपए, डीजल 53 रुपए। बांग्लादेश में 76 रुपए और डीजल 55 रुपए। ये सारा पेट्रोल डीजल जहां से आता है आपको पता ही है। फिर हमारे देश में आते ही इतनी कीमत क्यों होगी, तो उसे अंदाजा लगा सकते हो। 2013 के अंदर केवल डीजल बेचने से कितना गवर्नमेंट टैक्स ने कलेक्ट किया? 52,337 करोड़। 2019 और 20 में 2,13 करोड़ और 11 महीने में 3 लाख करोड़। ये केवल एक्साइज ड्यूटी के ऊपर इतना टैक्स गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया है। और अभी इस साल का बजट का टारगेट सरकार का 3.2 लाख करोड़। और कई लोगों ने स्टडी की है, मैंने भी थोड़ा बहुत देखा है। अगर गवर्नमेंट 8.50% अगर गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी कम कर देती है, तब भी ये सरकार का टारगेट पूरा हो सकता है टैक्स कलेक्शन का। तो पता नहीं, हमेशा किसान कह रहे हैं, आप लोग कह रहे हो डीजल की कीमत कम करो, क्यों नहीं कर रहे, ये आप लोग जानते हो। बाकी किसान चले हुण पीछे नहीं मुड़ते, क्योंकि ये तो गुरु महाराज दे बच्चे। गुरु गोबिंद सिंह जी 10th गुरु, जब वो लड़ाई वास्ते जाते सी मुगलों के खिलाफ, अन्याय की लड़ाई, अपने हक की लड़ाई की कहते सी, दे सिवा बरमोहे शुभ कर्मते कभी ना टरू, यही कहते सी ना। यही कह के किसान चले हुण, ये वापस नहीं मुड़ेंगे। इसी प्रकार आप लोगों ने देखा होगा, ये तो शांति की प्रतीक है। फर्स्ट गुरु गुरु नानक देव जी वंड के खाओ और रज के खाओ, यही कहते थे ना। टीकरी बॉर्डर पर आपने लंगर सिस्टम देखा होगा। और एक और, वैसे तो चीमा साहब ने 6 फाउंडेशंस बताई थी। इस आंदोलन की खास बात यह है, न हम हिंदू हैं, न मुस्लिम हैं, न सिख ईसाई, हम हैं भाई भाई। ये इस आंदोलन ने एस्टेब्लिश कर दिया ना पूरा। और तमाम महिलाएं बच्चे सब इसके अंदर हैं। अभी 3 कृषि कानून के बारे में जेड़े लीगल पहलू से गए, मेरे तो पहला घुमन साहब ने, चीमा साहब ने डिटेल में बता दिया, लेकिन आई विल टच अपॉन फ्यू थिंग्स अबाउट लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जेड़ा प्राइस एश्योरेंस और जमीन नु ठेके पे जेड़े एग्रीमेंट साइन करेंगे, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ एक तो ये इट इज ड्रैकोनियन लॉ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई उम्मीद न्याय दी नहीं है, क्योंकि कोई भी कॉरपोरेट हाउस ਤੁਹਾਡੇ नाल आएगा, जमीन ਤੁਹਾਡੀ पट्टे ते ले लेगा और फिर भाव तय कर देगा। उसके बाद उसके अंदर बहुत सारे वो भी लगा देगा। और कई एक सरकारें जो अभी तक किसी ने टच नहीं किया, गिरदौरी भी कह रहे हैं कि जो ठेके ते लेगा जमीन, गिरदौरी भी ਉਹਦੇ नाम होगी। आप समझते हो गिरदौरी होने के बाद क्या होगा? जो टेनेंट डिस्प्यूट हैं वो 100 गुना बढ़ जाएंगे। और वो कानून बना दी जा रहे हैं कुछ सरकार कि भाई जैसे ही कोई ठेके पे लेता है तो गिरदौरी उसी के नाम होनी चाहिए। और गिरदौरी उसके नाम होगी, और जब भी वो अपनी फसल बेचेगा उसके ऊपर 18% जीएसटी भी लगेगा। ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन है कृषि के ऊपर, इनडायरेक्ट टैक्सेशन। और सबसे जरूरी बात है
ये तो बड़े बड़े वकीलों की प्रैक्टिस भी बंद करने पर तुले। चीमा साहब मेरे साथ सहमत होंगे। द जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स इज डिबार्ड अंडर दिस न्यू एक्ट ऑफ 1920 or 2020. Jurisdiction of civil courts is debarred. There is a civilian conciliation board और फाइनल अथॉरिटी इज एसडीएम। आप कोर्ट दे विच नहीं जा सकते, एसडीएम फैसला करेगा, उसके बाद कलेक्टर दे कोल जाओगे, और उसके बाद कोई भी एग्रीमेंट या कोई भी दूसरी कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं हो सकता। कानून का अधिकार भी आपसे विड्रॉ कर लिया गया। और कोई सरकार कोई एक्ट बनाती है इसके खिलाफ, दैट विल आल्सो नॉट बी अप्लाइड। वैसे तो उसी एक्ट में लिखा हुआ है कि एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट विल बी एसेंशियल, उसी में लिखा हुआ है। इफ एनी स्टेट गवर्नमेंट वांट्स टू फ्रेम अ लॉ, इट हैज टू गो टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंट्रावेंशन दीज एनी ऑफ दीज लॉज। देन वन मोर सरप्राइज थिंग, ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਸਾਥ ਹੀ ਕਰ ਦਿਆ। There will be no application or appellate authority. Revenue, this amount decided by the SDM will be collected as revenue, land revenue. वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ land revenue ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਿੱਦਾਂ की ਜਾਂਦੀ है। भाई पटवारी थानेदार जाएगा और शामी फिर चल भाई थाने, वो जब तक पैसे नहीं दे उसने निकल, यही करते हैं ना। हाँ, कोई ला लागू नहीं है, इस किस्म का ये करेंगे। इसके अंदर है एमएसपी। एमएसपी की स्टडी कहती है द फार्मर्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट एमएसपी। किसी कानून दे विच कोई एमएसपी का जिक्र नहीं है। ये जबानी गल्लां करते हैं, जबानी गल्लां करते हैं, लेकिन किसी कानून में एमएसपी का कहीं जिक्र नहीं है। और फार्मर्स आर राइट। इसी तरह इन्होंने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं, और जो ट्रंकेटेड योजनाएं हैं, टूटी फूटी योजनाएं बनाते हैं, जैसे फसल बीमा योजना। फसल बीमा योजना दे विच की गुंडी है दसो, तुसी सारे जानते हो। फसल बीमा योजना क्यों नहीं कामयाब है, की गुंडी है? ओके, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ बनाया है, अगर आप इंश्योरेंस करा लेंदे हो, किसान एक यूनिट नहीं है, किसान एक यूनिट नहीं है, हाँ गांव एक यूनिट है। अगर आपकी 4 एकड़ फसल जल गई या आपकी 4 एकड़ फसल बर्बाद होगी, ओले के नाल बर्बाद होगी, आंधी तूफान से बर्बाद होगी, आपको पैसा नहीं मिलेगा। वो आके सर्वे करेंगे, देखेंगे भाई इस गांव में और कितनी फसलें बर्बाद हुई। ये ट्रंकेटेड योजनाएं कभी भी कामयाब नहीं होती। एमएसपी केवल 23 फसलों पर है, 23 फसलों के उत्ते एमएसपी है। और मेरे बड्डी जो मेरे साथ अकेडमी में थे, असी तो डेली 40 मिनट उत्थे किसानी करते सीगे कि नहीं, अर्ली मॉर्निंग। उत्थे डायरैक्टर सीगा मिस्टर प्रसाद, और फावड़ा साडे कंधे ते धर दिंदा सी और कहंदा चलो फावड़े धनाधन, चल फावड़े धनाधन, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। दिस यूज्ड टू बी फॉर इट। तो अगर हम जागेंगे तो कुछ न कुछ ले बैठेंगे, अगर खोएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे बर्बाद हो जाएंगे। तो जमीन भी कॉरपोरेट हाउसेज ले जाएंगे। एक छोटी, मैं ज्यादा टाइम तो नहीं ले गया, हाँ, एक छोटी सी बात बताता हूँ। कॉरपोरेट जो नुकसान सरकार का करते हैं, किसान तो कुछ भी नहीं करते। सबसे ज्यादा नुकसान कॉरपोरेट हाउसेस करते हैं। लोन वेवर की बात करते हैं, जब बैंक से क्रेडिट होता है तो किसानों का तो केवल 13.14% क्रेडिट है, और इंडस्ट्रीज का 35% है। पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर का क्रेडिट 7.7 लाख, और 10 कॉर्पोरेट हाउसेस का जो क्रेडिट है वो 10 कॉर्पोरेट हाउसेस का इतना ही क्रेडिट है, बाकियों का बात छोड़ो। 2004 से 2019 तक सरकार ने 8.41 लाख करोड़ लोन माफ कर दिया इंडस्ट्रीज का, और जिसमें से 75% 2014 से लेकर 2019 तक किया।
45 लाख, और साढ़ा एक पैसा भी नहीं माफ करते। इसलिए मैं तो कहता हूँ, असी आहें भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा भी नहीं होती। Thank you very much. Some other time. We are also trying to organize one seminar. हाँ, ओके। वैसे तो प्रोफेसर घुमन साहब ने कह दिया था कि पॉसिबिलिटीज दसो, तुसी ये आखो मनाई गल किदां सकदी है, किदां गल मना सकते हैं। हाँ, वो एक तो ये है कि हमने तो अपनी तरफ से कर रखा है, अपनी तरफ से शुरू किया है। साडा तो एक MLA था, उन्होंने कहा भाई आप अस्तीफा दे दो, अस्तीफा दे दिया, असी किसानों के नाल लगे। तुसी जेडे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो पहला जयप्रकाश नारायण जी ने भी कहा था और चौधरी देवीलाल ने भी कहा था, चुने हुए प्रतिनिधि जे जनता दी उम्मीदां तो पूरे नहीं उतरते तो उन्होंने वापस बुलाने का हक मिलना चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो उन्होंने वापस बुलाओ, तुसी टोटल बाइकाट करो, अपने आप गल्ला मानेंगे। अभी तो दूर दूर की गल हो रही है। अगर ते आप लोग उन्होंने बाइकाट करोगे, कई जगह हुआ भी है, तो ये प्रेशर गवर्नमेंट के उत्ते ज्यादा बढ़ेगा। मैनू प्रधानमंत्री बना दो, 6 महीनों के सारा काम ठीक कर देंगे। ये तो सरकार ने करना, असी की करना? सीधी गल करो, करना ही सरकार ने। देखिए, हाँ, जेडी नेचुरल कैलामिटीज वगैरह हैं, चौधरी छोटू राम ने कहा था किसान कल्याण कोष बनना चाहिए, ताकि नेचुरल कैलामिटीज ओदे वित्ते ग्रांट किसानों दी जा सकती, सब कुछ किया जा सकता है। राज्यसभा में भी किसी ने पॉइंट उठाया था, लेकिन उससे उत्ते गवर्नमेंट नहीं आती। कोई किसान भलाई की बात है, किसान अगर आप सारा लोन भी माफ कर दोगे, जो कि 12.43 लाख है, तो ये भी कहीं कुछ भी नहीं है गवर्नमेंट के लिए। किसान जो सुइसाइड करी है, वो सबसे ज्यादा डेप्ट कर्जे दे बोझ तक की है। तो गवर्नमेंट की अगर आप जो है 100 आदमी को तो जगा सकते हो, जागदे नु की जगाओगे? पता है, गवर्नमेंट को भी पता है सारा। लेकिन जेदा कहते हैं ना, सोल्जर्स एंड सेलर्स always remembered in times of war. इसी तरह किसान आर always remembered in times of election. जदों इलेक्शन आएगा उदों तुहाडी पूछोगी। जे तुसी 61 उत्थे वेस्ट बंगाल दे विच मार दोगे, फिर कुछ नहीं होगा, फिर तुहाडे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। समझ गए मेरी गल? ओके, थैंक यू।